پاکستان اب کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ سعودی عرب ایران تصادم روکنے کے لیے بھی اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا ڈیووس میں پاکستان اسٹریٹجی ڈائیلاگ سے خطاب۔ مزید بولے کہ افغان جنگ کے باعث ہمارے معاشرے میں کلاشنکوف اور منشیات کا کلچر آیا۔ ملک میں قیام امن کا سب سے زیادہ فائدہ سیاحت کے شعبے کو ہوا۔ وزیر اعظم نے امریکی صدر کو کشمیر ایشو اور FATF پر سپورٹ کا کہا۔ ٹرمپ نے جلد دورہ پاکستان کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اظہار خیال۔ کہتے ہیں صدر ٹرمپ نے کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا وہ عمران خان کو پسند اور ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ ملک میں آٹے کے ریٹس کم نہ ہوئے۔ سندھ میں فائن آٹا 65 روپے اور چکی کا آٹا 70 روپے فی کلو میں فروخت۔ لاہور میں چکی مالکان ایسوسی ایشن نے مقدمات درج کرنے پر غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کر دی۔ ادھر خیبر پختونخوا کی دیکھا دیکھی بلوچستان کے نان بھائیوں نے بھی روٹی کا ریٹ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ پشاور میں عوام نے کم وزن روٹی کو پاپڑ قرار دے دیا۔ روٹی جو ہے نا وہ مہنگے 120 گرام 100 گرام وہ صرف پاپڑ ہے۔ 115 گرام ویسے بھی کھا بھی نہیں سکے گا کیونکہ وہی بالکل پاپڑ ہو چکا ہے اور عمر رسیدہ باندھے تو بالکل نہیں کھا سکیں گے۔ 10 روپے کے روٹی کے اوپر تو فیٹ نہیں پڑتا ہے، 2 کے اوپر بھی نہیں پڑتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی روٹی ہوتی ہے۔ 10 والی روٹی 15 پہ بھیج رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے اس پہ سختی ہونی چاہیے۔ لوگ 10 کی نہیں لے سکتے، ابھی 15 کی کیا لیں گے؟ عظمہ بخاری کی آٹا بحران پر تنقید۔ محکمہ خوراک پنجاب نے آٹے کا ٹرک لیگی خاتون رہنما کے گھر پہنچا دیا۔ عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ محکمہ فوڈ کے اہلکاروں نے 30 سے 40 آٹے کے تھیلے گھر کے باہر رکھے۔ پنجاب حکومت کے کہنے پر ان کے گھر کے باہر تماشا کیا گیا۔ اگر ہم نے ہی بتانا ہے کہ آٹا کہاں نہیں مل رہا تو یہ استعفیٰ دے دیں اور گھر جائیں۔ گندم اور آٹا اسکینڈل میں ملوث کرداروں کی نشاندہی کرنے والا ادارہ ہی حکومت کے زیر اطاعت آ گیا۔ مسابقتی کمیشن نے وقت سے پہلے ہی بحران کی نشاندہی کی۔ سفارشات پر عمل کرنے کی بجائے وزیر اعظم نے الٹا چیئرمین مسابقتی کمیشن کو ہی جھاڑ پلا دی۔ ذرائع کے مطابق مسابقتی کمیشن نے 10 دسمبر کو وفاقی کابینہ کو حتمی رپورٹ پیش کی تھی۔ منی لانڈرنگ کیس اور پارک لین ریفرنس کی سماعت آصف زرداری سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم کی کارروائی مؤخر۔ سماعت 11 فروری تک ملتوی۔ فریال تالپور نے عدالت میں حاضری لگائی۔ آئندہ سماعت پر ملزم انور مجید کو ایئر ایمبولنس کے ذریعے لانے کے لیے انتظامات کرنے کی ہدایت۔ ادھر میگا منی لانڈرنگ کیس میں ایک اور ملزم سید حسین فیصل جاموٹ وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ نیب لاہور نے شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کے مزید شواہد حاصل کر لیے۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف، حمزہ اور سلمان شہباز کے خلاف مزید نئے شواہد ملے ہیں۔ شریف گروپ آف انڈسٹریز میں 300 سے زائد گھوست ملازمین کا انکشاف ہوا۔ PIA کے عملے کی لندن جانے والی پرواز کے مسافروں سے بدتمیزی۔ PK 757 میں ہیڈ نشست پر شروع ہونے والا جھگڑا تکرار اور مار کٹائی تک جا پہنچا۔ پچھلی نشست پر بیٹھی خاتون نے ویڈیو بنائی تو عملے نے موبائل فون چھین لیا۔ دیگر مسافروں سے بھی بدسلوکی۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر اترتے ہی دونوں مسافر گرفتار کرا دیے۔ IMF کی جانب سے $540 ملین کے قسط جاری کرنے کی نئی 4 شرائط سامنے آ گئیں۔ ذرائع کے مطابق شرائط کے پورا ہونے پر قرض کے قسط جون 2020 تک جاری ہوگی۔ فروری اور مارچ میں IMF سے ان شرائط پر مذاکرات ہوں گے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ریجن میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن دوبارہ شروع۔ مظفر آباد کے متاثرہ علاقوں میں نظام زندگی شدید متاثر۔ رابطہ سڑکیں 3 ہفتے گزرنے کے باوجود بحال نہ ہو سکیں۔ بیشتر دیہات کے زمینی رابطے منقطع۔ گلگت استور شاہراہ پر بڑی گاڑیوں کی بندش کی وجہ سے اشیاء خورونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा डेवोस, पाकिस्तानी स्ट्रैटेजी डायलॉग फोरम से खिताब। दूसरी जानिब मुल्क भर में आटे के बहरान पर भी करेंगे बात इसी बुलेटिन में। मैं हूं सफ्दर अली और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी नुकसान उठाया, फैसला किया है अब किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का डेवोस में पाकिस्तानी स्ट्रेटजी डायलॉग फोरम से खिताब। पाकिस्तान कई तहजीबों का मस्कन, सयाहत के लिए बेहतरीन मुल्क है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों और कंपनियों को तरगीब दे रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी नुकसान उठाया, फैसला किया है अब किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। वजीर आजम का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर पाकिस्तान स्ट्रैटेजी डायलॉग फोरम पर दो टोक ऐलान। कहा कि पाकिस्तानी कौम ने 70,000 कुर्बानियां दी, इस जंग में कामयाबी के बाद मईशत की तरक्की तरजीह है। War on terror that left us with over 70,000 people dead, suicide attacks. Pakistan considered one of the most dangerous places in the world. So when my government came into power, we made a conscious decision that we would only partner people in peace. We will not become part of any conflict. इमरान खान का कहना था कि अफगान जंग के बायस हमारे मुआशरे में मनशियात और क्लाशनकोफ कल्चर आया, जिसने हमारे मुआशरे को तबाह किया। तालिबान से अमन मुआहिदा पाकिस्तानी मईशत और खित्ते में क़याम अमन के लिए जरूरी है। We are now working actively with the Americans for peace in Afghanistan. So there are good signs, there's a chance of ceasefire in Afghanistan. Very important for us because that opens up the economic corridor from Pakistan to Central Asia. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानी सरजमीन कई तहजीबों का मस्कन है और सियाहत के लिए बेहतरीन मुल्क है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान की ज्यादातर आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। हुकूमत में आने के बाद हमने सबसे ज्यादा तवज्जो मईशत पर दी। The first benefit Pakistan had is in tourism. Pakistan is probably one of the most in terms of tourism, one of the most undiscovered countries in the world. Then the next thing was investment. We have a young population, need employment, and the only way we can give them employment is by bringing investment, local investment, start reindustrialization. सरमायाकारी की राह में हायल गैर जरूरी रुकावटों को दूर किया। पहला साल करेंसी को मुस्तहकम करने और जारी हिसाबात के खसारे को कम करने में सर्फ किया। और डेवोस में वज़ीर आज़म इमरान खान की अहम शख्सियात से मुलाकातें जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से सीमेंस कंपनी के CEO जोए काइसर की मुलाकात हुई है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, सरमायाकारी और महारत बढ़ाने के लिए ताउन पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान से यूट्यूब के CEO सोसन वजोल्की की भी मुलाकात हुई है। पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने पर तबादला ख्याल किया गया। डेवोस में वज़ीर आज़म इमरान खान की अहम शख्सियात से मुलाकातें जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान से सीमेंस कंपनी के CEO जोए काइसर की मुलाकात हुई। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सरमायाकारी और महारत बढ़ाने के लिए ताउन पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान से यूट्यूब के CEO सोसन वजोल्की की भी मुलाकात हुई है। पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने पर तबादला ख्याल किया गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन दहानी कराई है कि वो जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से मुलाकात मुफीद रही। वज़ीर आज़म ने FATF का मामला उठाया और अमरीकी ताउन मांगा। वज़ीर आज़म ने FATF पर पाकिस्तानी इक़दामात से अमरीकी सदर को आगाह भी किया। वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से मुलाकात मुफीद रही, ऐसा कहना था वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का। वज़ीर आज़म ने FATF का मामला उठाया, अमरीकी ताउन भी मांगा। मकबूजा कश्मीर में तारीख के बदतरीन कर्फ्यू को 171 दिन बीत गए। जिला पुलवामा के इलाके अवंतीपुरा में मजीद एक कश्मीरी को शहीद कर दिया गया। आगे बढ़ते आपको बताएं कि आटे की कीमतें बेकाबू हो गई, कीमतों का तायुन ना हो सका। लाहौर में आटा चक्की मालिकान ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल कर दी। छापों और गिरफ्तारियों पर इंतजामिया और चक्की मालिकान में ठन गई। चक्की मालिकान ने आटा 45 रुपए फी किलो फरोख्त करने का हुक्मनामा मुस्तरद कर दिया। महंगाई में डूबी अवाम ने फौरी मामलात हल करने का मुतालबा किया है। शहरी कहते हैं कि उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो गए, इंतजामिया होश के नाखुन ले। सिंध में फाइन आटा 65 रुपए, चक्की का आटा 70 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है।
दारुल हुकूमत लाहौर में चक्की आटे की कीमत का तयन न हो सका। कीमत के मामले पर आटा चक्की एसोसिएशन और जिले हुकूमत के दरमियान ठन गई। जिले इंतजामिया लाहौर ने 5 बोरी गंदम फी चक्की देने का ऐलान करने के अलावा आटा 45 रुपए फी किलो में फरोख्त करने का हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसे चक्की मालकान ने मुस्तरद करते हुए आज हड़ताल का ऐलान। महंगाई की सताई हुई अवाम ने हुकूमत से फौरी तौर पर मामले को हल करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं खुदारा इंतजामिया होश के नाहुन ले, घरों के चूल्हे पहले ही ठंडे हो गए हैं। चक्की आटा मालिकान ने गुज़िश्ता रोज आटे में 2 रुपए कमी करके 68 रुपए फी किलो फरोख्त करने का ऐलान किया था, जबकि जनरल सेक्रेटरी चक्की आटा एसोसिएशन के मुताबिक जिला इंतजामिया ने अभी गंदम फराहम नहीं की और जबरदस्ती 45 रुपए में फरोख्त करने का कहा जा रहा है। कैमरामैन अहमद रजा के साथ फहीम अमीन, 92 न्यूज़ लाहौर। क्या अजब बात है कि लाहौर में आटे की कमी की निशानदही करने पर जिले हुकूमत ने आटे के थैलों से भरा ट्रक रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी के घर पहुंचा दिया। रहनुमा नून लीग कहती हैं कल एक शो में इस मामले की निशानदही की थी, इसीलिए पंजाब हुकूमत ये ड्रामा कर रही है। लाहौर से देखिए मियां शाहिद नदीम की रिपोर्ट। बुखारी की जानिब से मिनिस्टर हाउस इंतजामिया से शिकायत भी की गई, जिसके बाद एक थैला रखकर ट्रक वापस भिजवा दिया। रहनुमा नून लीग का कहना था कि अगर हमने ही इस नाअहल हुकूमत को बताना है कि पंजाब में आटा कहां कहां नहीं मिल रहा तो ये इस्तीफे दे दें। मैंने कंट्रोलर फूड को कहा मेरे घर के बाहर तमाशा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उनका इसरार था कि ट्रक मेरे घर पे खड़ा रखा जाएगा, जिस पर मैंने सख्ती से मना किया। मियां शाहिद नदीम, 92 न्यूज़ लाहौर। इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। अज़मा बुखारी साहबा, लोगों को तो आटा मिल नहीं रहा, आपके घर के बाहर 30-40 थैले आटे के पहुंचा दिए गए। जी बहुत शुक्रिया जी। जाहिर है जब सियासी जोकर जो हैं वो ऐसे बड़े ओंदों पे बिठा दिए जाएं तो फिर यही होगा। गरीब को आटा वो दे नहीं सकते, लेकिन बदतमीजी करवा लें, आप तज़हीक करा लें, आप मजाक उड़वा लें। अब ये जो आज करने की कोशिश की है, इससे हुकूमत ने साबित किया है कि ये नाअहल और नालायक होने के साथ साथ निहायत गैर संजीदा और जाहिल भी हैं। मेरी बार बार जो तनकीद है आटे के बहरान के हवाले से, पहले तो वो मानने को तैयार नहीं है कि कोई आटे का बहरान है, और जब वो मानने के लिए तैयार नहीं है तो इस्लाह की बात तो खैर मुमकिन ही नहीं है। और मैंने कल एक जिक्र किया टॉक शो के अंदर, जब वो मानने को तैयार नहीं थे कि आटे का बहरान है, तो मैंने अपनी एग्जांपल देते हुए कहा कि जी मैं भी जो है, मेरा कुक भी ढूंढ रहा है, उसको आटा नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा आप गलत कह रही हैं, 790 रुपए में हर जगह मौजूद है। तो मैंने एक हिस्टेरिकली नहीं होता, मैंने उसे कहा, मैंने कहा अच्छा जहाँ मिल रहा है मुझे भी भिजवा देना। और फिर यह है कि जो सबसे घटिया हरकत की है कि मेरे कुक ने एक थैला जो है वो उनसे 790 रुपए का खरीदा। वैसे मुझे पता होता तो मैं वो भी ना खरीदने देती। उसके बाद वो आया, मुझे नॉक किया उसने, मैं सो रही थी। उसने कहा कि जी वो 30-40 थैले आपके घर उसके बाहर गेट के बाहर रख के फुटेज बना रहे हैं। मैं बाहर गई और मैंने जाके पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी वो चूंकि ट्रक आपके घर के सामने खड़ा है तो बाकी जो गली के लोग खरीद रहे हैं आटा वो हम आपके जो है अनलोड कर रहे हैं। तो मैं नाराज हुई। उन्होंने कहा जी आज सारा दिन आटा का जो ट्रक है आपके घर के बाहर रहेगा। और मैंने सख्ती से कहा कि ये कोई तरीका नहीं है, कोई तमाशा नहीं है। ये मेरी गली के लोगों ने अगर आटा ले लिया है तो साथ वाली गलियों में जाइए और ये आटा वहां लेके जाइए जहां लोगों को अवेलेबल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर आटा इतनी वाफिर मिकदार में अवेलेबल है तो ये आटे के ट्रक ले लिए क्यों घूम रहे हैं? आटे के ट्रक की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि हर गली मोहल्ले में हर छोटी बड़ी जगह पर आटा मौजूद होगा। लेकिन सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी है, बदतमीजी करनी है, मसाइल का हल नहीं ढूंढना, और ये सब आपके सामने है। सही बात, शुक्रिया। अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और अपने मौक़िफ़ से आगाह कर रही थी। अभी आपको बरह रास्त लिए चलेंगे, मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकवान गुफ्तगू कर रही हैं। आवाज़ को जिस तरह से दबाया हुआ है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान उन कश्मीरियों की आवाज़ बन के बैनुल-अक़वामी फोरम्स पे उनका मुकदमा लड़ रहे हैं। और आपने देखा कि उस मीटिंग में जो दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से एक नई जहत और नई आपने देखा कमिटमेंट कि अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दुनिया में जिससे मिल रहे हैं, किसी से इमदाद की बात नहीं हम कर रहे, किसी से हम ट्रेड के अलावा एड पे मबनी मंसूबे डिस्कस नहीं कर रहे। एड हमारा टारगेट नहीं, ट्रेड हमारा टारगेट है। और दुनिया के जिन जिन रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें हुई, वो पाकिस्तान का दरख्शां रोशन पुरअमन चेहरा जो है दुनिया को दिखाने में मसरूफ़ अमल है।
तो मैं आपका जो यहाँ मीडिया का रोल है, मैं आपको खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर मुश्किल तरीन हालात में मीडिया ने जिस तरह अपना रोल अदा किया, अपनी जानों को हथेली पे रख के आपने इस सूबे में अमन की शमा को रोशन करने के लिए जो अपने खून से दिए जलाए हैं, हम उसे कदर की निगाह से देखते हैं। और इंशाअल्लाह कल प्रेस क्लब में तफसील से हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और बाकी बातें वहाँ होंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म बैनुल अक़वामी फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे हैं। मसला कश्मीर को आलमी सतह पर हल करने के लिए डायलॉग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान को जिस तरह जगाया है, ट्रंप ने भी उसका जिक्र किया। शहजादा हैरी और इनकी अहलिया मेघन मार्कल ने बरतानवी खबरसां इदारों को ख़त के ज़रिए मुतनब्बे कर दिया है कि अगर उनकी तस्वीर खरीदी या शाया की गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और इस अमल को हिरासा करना समझा जाएगा। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक वकला के जरिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और फोटो एजेंसियों को भेजे गए खत में कहा गया है कि मीडिया के नुमाइंदे मुस्तकिल उनके घर के बाहर मौजूद हैं और जदीद कैमरों से उनकी तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा वो बाज रहें वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। प्रिंस हैरी शाही जिम्मेदारियों से दस्तबरदार होने के बाद नई जिंदगी की तैयारी के लिए बरतानिया से कनाडा पहुंच गए हैं, जहां उनकी अहलिया मेघन मार्कल और 8 माह का बेटा आर्ची पहले से मुकीम हैं। मुस्लिम रोज़ वेलफेयर की चेयरपर्सन सारा क्यूम ने कहा है कि सिंध के पसमानदा तरीन इलाकों में लोगों को साफ पानी के साथ साथ बुनियादी तालीम फराहम करना भी हमारी फलाही तंजीम की अव्वलीन तरजीह है। सिंध के दौरे से वापसी पर लंदन में ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने तमाम फलाही सरगर्मियों से आगाह किया। आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में मुस्लिम रोज़ वेलफेयर की चेयरपर्सन सारा क्यूम साहबा मौजूद हैं, जो कि काफ़ी अर्सा से लंदन के अंदर जो है वो यहाँ से डोनेशन लेकर पाकिस्तान के जो पसमानदा इलाके हैं सिंध के अंदर, थर के अंदर, और वहाँ पर जो है वो फलाही काम करती हैं। अभी वो रिसेंटली पाकिस्तान से आई हैं। वहाँ के इनसे पूछते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और किन जो फील्ड हैं, किस एरियाज़ के अंदर जो मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। जी सारा साहब। थैंक यू वेरी मच। 92 का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमें साथ देते हैं और हम इंशाल्लाह ताला आप साथ ही रहेंगे। हम इस वक्त सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में है, बेसिक प्रॉब्लम जो है, नीड है बेसिक जो है वो थरपारकर डेजर्ट के अंदर सहराए थर में जिसे हम कहते हैं पानी की है। तो हमने इस दफ़ा पूरे साल हमने इस दफ़ा काम किया है पानी के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास 170 हैंड पम्प्स हैं, 20 हमारे पास वाटर वेल हैं और हम इस दफ़ा जाते रहे, हम 120, 140, 200 तक हम लोग गए हैं, लेकिन इस दफ़ा हम 650 फीट नीचे गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें 650 फीट नीचे जाके 50,000 लोगों के लिए पानी, स्वीट वाटर, क्लीन स्वीट ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट मैं इंशाल्लाह इफ्तिताह करके आई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो ये। इससे पहले हमने 3 हमारे पास स्कूल हैं। अच्छा, आपके जो डोनर्स हैं मेन, क्या वो पाकिस्तानी हैं या आप किसी गैर मुल्कियों से भी इमदाद लेती हैं? नहीं, पाकिस्तानी को देगा, ज़ाहिर है नहीं, कोई गैर मुल्की नहीं है, कोई फॉरेनर हमारे पास नॉन पाकिस्तानी नहीं है। सारे पाकिस्तानी यूके ब्रिटिश हैं, कुछ दुबई के हैं, कुछ पाकिस्तान के अपने अंदर के हैं जो मेरे खाला खालू, आंटी अंकल फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं। लेकिन जो मेन डोनेशन हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूके बेस्ड डोनेशन है। हमारा जो मेन प्रोजेक्ट जो था, हमने एजुकेशन से शुरू किया था, वेलफेयर एंड एजुकेशन एंड हेल्थ, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये कि अवेयरनेस नहीं है, लोगों को अवेयरनेस ना होने की वजह से जो है वो कोई काम आगे नहीं कर सकते। तो हमने इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3 स्कूल हैं जिसमें 290 बच्चे पढ़ते हैं। 4था स्कूल हम रमज़ान के बाद खोलेंगे, जिसमें ऑर्फन्स हैं, बेवाएँ हैं, उनके बच्चे आते हैं। जिन बच्चों ने कभी स्कूल नहीं देखा था वो आते हैं, उनको खाना मिलता है, वहाँ पे यूनिफॉर्म फ्री है, किताबें फ्री हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बच्चे जो हैं वो अच्छे इंग्लिश बोलने लगे हैं अब तो अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे टीचर्स भी हमारे अपने हैं, स्कूल की निगहदाश्त भी हमारी अपनी है, गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। तो बेसिक नीड, अगर आप किसी को पेट भर के रोटी खिला दें, आप उसको पानी दे दें, तो वो अपना कुछ आगे भी सोच सकता है, पॉजिटिव थिंकिंग होती है। फिर हम उनको एजुकेशन की तरफ लाते हैं कि भाई देखो, तुम्हें घर दे दिया, पानी दे दिया, तुम्हें हर चीज़ बेसिक दे दी, अब तालीम तो हासिल कर लो। तो जब इंसान को घर बैठे सब चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर वो अपने वही बच्चों को जिनसे खेती बाड़ी वगैरह कराते थे वो उनको फिर तालीम की तरफ भेजते हैं।
बिल्कुल हम तो करते हैं कि जो मुखिर हजरात हैं वो आपसे ताउन करेंगे और आपके जो प्रोजेक्ट हैं वो कामयाब करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सर साहब। थैंक यू सो मच। मैं तमाम मुखिर हजरात से 92 न्यूज़ की तरफ से मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आइए, मुस्लिम रोज़ वेलफेयर को सपोर्ट कीजिए। एज ए वुमेन मैं बहुत मुश्किल और हार्ड वर्क में काम करती हूँ और सारा थर में काम करती हूँ, तो प्लीज़ आप आएँ, सपोर्ट करें और सब आप में हमारे साथ रहें। थैंक यू। ड्राइविंग लाइसेंस के इशू पर लीड्स के 5 काउंसलर्स और कम्युनिटी रहनुमाओं ने भी एहतजाज करने वाले ड्राइवर्स की हिमायत कर दी। उनका कहना था कि लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट ने अपने फैसले पर नजरसानी ना की तो टैक्सी सेक्टर से वाबस्ता 6000 अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। लेबर पार्टी के रहनुमा चौधरी शौकत की तरफ से बुलाए गए इजलास से काउंसलर्स और कम्युनिटी रहनुमाओं ने मजीद क्या कहा, देखिए आसिफ कुरैशी की खुसूसी रिपोर्ट में। लीड्स में सरापा एहतजाज बने टैक्सी ड्राइवर्स की हिमायत में पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमा और मुकामी काउंसलर्स भी मैदान में आ गए हैं। लेबर पार्टी लीड्स के सीनियर रहनुमा चौधरी शौकत अली ने कम्युनिटी रहनुमाओं और लीड्स के काउंसलरों का इजलास मुनक्किद किया और लीड्स सिटी काउंसिल के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्सी ड्राइवरों को बेरोजगार करने की पॉलिसी बारे काउंसलरों को आगाह किया। इस मौके पर उनका कहना था कि 6 पॉइंट्स ड्राइविंग लाइसेंस पर लगने की सूरत में 3 साल के लिए ड्राइवर को टैक्सी चलाने से रोक दिया जाएगा, जो कि सरासर नाइंसाफी है और रोजगार छीनने की साजिश है। उन्होंने कम्युनिटी रहनुमाओं और काउंसलर से अपील की कि इसके लिए लॉबिंग करें और टैक्सी ड्राइवरों को बेरोजगार होने से बचाएं। चौधरी शौकत अली ने लीड्स के 5 काउंसलरों के खिलाफ सोशल मीडिया पर जारी मुहिम की पुरजोर मजम्मत की और कहा कि तमाम काउंसलर टैक्सी ड्राइवरों के साथ खड़े हैं। मुझ पर और मेरे कॉलीग्स हैं जो उन पर एतराज है, जो आज यहाँ मौजूद थे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ और ये ऑन एयर बात चलेगी और ये सिर्फ सोशल तक नहीं, इंटरनेशनल मीडिया तक ये बात जाएगी कि मैं और मेरे साथी ये दावे के साथ कह सकते हैं और हम तमाम सुनने वालों को राइटिंग में प्रूफ दे सकते हैं जी कि इसकी हम कहाँ तक मुखालफत कर रहे हैं। और उनको मैंने ये बड़ा वाज़ेह लफ्ज़ कहा है कि ये पॉलिसी हमारे लिए फ्यूचर में बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस मौके पर मेंबर एग्जीक्यूटिव लीड्स काउंसलर मोहम्मद रफीक, साबिक लॉर्ड मेयर काउंसलर मोहम्मद इकबाल, चेयरमैन कम्युनिटी कमेटी ईस्ट लीड्स काउंसलर आरिफ हुसैन, काउंसलर सलमा आरिफ, काउंसलर कुमेला मकसूद, चौधरी हनीफ एडवोकेट, चौधरी याकूब, चौधरी जावेद, चौधरी शौकत ने कम्युनिटी रहनुमाओं से इजहार ख्याल और 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो टैक्सी ड्राइवरों के साथ हैं और इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ भरपूर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इस पर जो है ना काफ़ी हमारा जो साथ है, हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं ड्राइवर्स से और पूरी जो हमारी जो पब्लिक है, जो एसोसिएशन है, ट्रेड है, प्राइवेट ड्राइवर्स एसोसिएशन जो है, प्राइवेट हायर एसोसिएशन, सबसे हम मिलकर इंशाल्लाह जो हमसे हो सका अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना बेहतरी होगी। 3 और 6 पॉइंट बड़े आसानी से और फिर बैन, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी। हमने पूरी तरह आवाज़ उठाई है, लीड सिटी काउंसिल के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और काउंसिल से बात की है और वो दोबारा इस केस को रिव्यू करेंगे, इस पॉलिसी को, और इंशाल्लाह हम अपनी टैक्सी बरादरी के साथ हैं शाना बशाना और हमेशा रहेंगे। पहले भी हमने कम्युनिटी के साथ काम किया है और आगे भी जो है ना हम कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करने के लिए हाजिर हैं और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ 5 काउंसलरों का जो यहाँ पर आए हैं और ये एक मुत्तहिद होकर एक एजेंडे पर हैं और हमारा और उनका मकसद एक ही है कि हमारे कम्युनिटी के जो मकासद हैं या कोई इश्यूज़ हैं वो इकट्ठे मिलकर जो है ना हल करें। Taxi suitability policy, obviously loads of people are quite concerned about certain issues, so we are listening to the community. Leeds City Council is also listening to the community and we need to work together on this. All of the councillors need to obviously listen to what the concerns are and take them forward, and we've got some meetings coming up this week. Hopefully we'll get some more information and then we can pass that on back to the community. काउंसलर हमारी मुखालफत कर रहे हैं सिटी काउंसिल में, उनको यह सोचना चाहिए कि हम टैक्सी ड्राइवर सबसे बड़ा रेवेन्यू उनकी लीड सिटी काउंसिल को हम दे रहे हैं। इनको अपने रेवेन्यू की और अपने जो वोटर्स हैं इनकी अगर परवाह नहीं है तो मेरे ख्याल में इनको सियासत से निकल जाना चाहिए। टैक्सी ड्राइवर्स ने हिमायत करने पर पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं और काउंसलर्स का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था उनकी हिमायत से टैक्सी सेक्टर बेरोजगारी से बचने में कामयाब हो जाएगा। बर्मिंघम की जामिया मस्जिद अनवारुल उलूम कैपिटल स्मेदिक में 11वीं शरीफ की माहाना महफिल मुनाकिद हुई, जिसमें मिडलैंड्स भर से नौजवानों ने भरपूर शिरकत की।
रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद काज़मी। नौजवानों की तालीम और तरबियत की गर्ज से मसाजिद अहम किरदार अदा करने में मसरूफ़ अमल हैं। इसी मकसद के लिए बर्मिंघम की जामिया मस्जिद अनवारुल उलूम कैप हिल समेतिक में 11वीं शरीफ की महाना महफिल का इनेकाद किया गया, जिसकी सरपरस्ती मस्जिद के इमाम व खतीब कारी फ़ख्रुज़्ज़मान जबकि सदारत चेयरमैन हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट पीर नियाज़ुल हसन सरवरी कादरी ने की। महफिल में इलामा मुनव्वर हुसैन नक्शबंदी, कारी मोहम्मद अमीन नक्शबंदी सदीकी, साहबजादा इमाम हुसैन रजा सदीकी, इलामा मोहम्मद रमज़ान रजा समेत मारूफ नातख़्वां कारी तनवीर इकबाल कादरी और मदरी ग्रुप ने बतौर ख़ास शिरकत की। हैलीफैक्स से आए हुए ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवान आलिम दीन इलामा शहजाद आदिल ने वालिदैन के हकूक़ के हवाले से रूह परवर खताब किया। उन्होंने इस्लाम में माँ की अहमियत, इज़्ज़त व एहतराम और मकाम से नौजवानों को आगाही देते हुए कहा कि जन्नत आपकी माँ के कदमों तले है। अगर दुनिया में कामयाबी हासिल करनी है तो माँ बाप का एहतराम, इज़्ज़त और मकाम को पहचानना लाजिम है। प्रोग्राम का इनेकाद इंतहाई अहमियत का हामिल है। खूबसूरत प्रोग्राम हुआ जिसमें अल्लामा आदिल शहजाद साहब ने नौजवानों की तरबियत के लिए और आज के मसाइल के लिए बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू की। तो ये एक नौजवानों के लिए तरबियती नशस्त थी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इस पर मैं इंतज़ामिया को और अल्लामा कारी फ़ख्रुज़्ज़मान साहब को, तमाम उलमाए किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। We are no doubt living in difficult and testing times, and in today's gathering here in Birmingham we highlighted the importance of respecting and honouring parents. If your parents are alive, then be sure to serve them, do their khidmat and earn your place in Jannatul Firdaus through this service. And if your parents have left this dunya, then it is important that you make dua maghfirat for them. और इस महफिल पाक में हमने वालिदैन के अदब व एहतराम के हवाले से सीखा कि अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो वालिदैन की इज्जत और उनकी खिदमत से ही हमें कामयाबी हासिल हो सकती है। हमें चाहिए अपने माँ बाप का एहतराम करें, माँ बाप का एहतराम करके ही हम मुआशरे में एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। यंगस्टर बहुत ज़्यादा तादाद में आए। इमाम आदिल शहजाद साहब ने बहुत अच्छा पेरेंट्स के हवाले से खिताब किया है और बच्चों ने खूब दिल लगी के साथ इसे सुना है और उन्हें ये इस वैल्यू का पता चला है कि वालिदैन कितनी अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नेमत है। उनका कहना था कि ऐसी तकारीब से नौजवान नस्ल को जिंदगी गुजारने का तर्ज अमल समझ में आता है और बेराह रवी से बचने का मौका मिलता है। आखिर में पीर नियाज़ुल हसन कादरी ने कश्मीर की आज़ादी और मुस्लिम उम्मा की सलामती के लिए दुआ भी की। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। जनूबी कोरिया के मुख्तलिफ शहरों में तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी के इज्तिमात और महाफिल हुई, जिनमें रुकन शुरा हाजी गफूर रजा अतारी ने खुसूसी बयान किया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में बाबरकत महफिल में शिरकत की। दीगर तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जनूबी कोरिया के शहर थेगू की मस्जिद फैज़ान जमाल मुस्तफ़ा में तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी का इज्तिमा हुआ, जिसमें रुकन शुरा हाजी याफूर रजा अतारी ने खसूसी शिरकत की। उन्होंने मस्जिद में अजान की सआदत हासिल की और नमाज असर की जमात भी कराई। इस मौके पर उन्होंने महफिल में बयान करते हुए इस्लामी भाइयों को मदनी फूलों से नवाजा। बाद में उन्होंने साउथ कोरिया के शहर बुसान में भी सुन्नतों भरे इज्तिमा से खिताब किया। जिन बीवी बच्चों के लिए इसने कमाया, अपने आप को मुशक्कत में डाला, अपने आप को तकलीफ में डाला, अपने आप को सर्दी गर्मी बर्दाश्त की, जिनके लिए अब हदीस पाक में क्या आ रहा है कि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में वो दावा दायर कर देंगे कि या अल्लाह इस शख्स से हमारा हक लेकर दे। किससे? बाप से, मर्द से, क्योंकि इसने कभी हमें दीनी उमूर नहीं सिखाए थे। रुकन शुरा हाजी याफूर रजा अतारी ने कोरिया के शहर इंचन के रेस्टोरेंट में कारोबारी हजरात के मदनी हलके में भी शिरकत की और कारोबारी हजरात को दीनी तालीमात से आगाह किया। सुन्नतों भरे इज्तिमात में ओवरसीज पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के मुसलमान अकीदत व एहतराम के साथ शरीक हुए और महाफिल की बरक़ात समेटी। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। ग्लोरिया तूफान ने स्पेन भर में तबाही मचा दी। कम से कम 4 अफराद हलाक जबकि 43 के करीब जख्मी हैं। बेशतर इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इंतजामिया का कहना है कि कैटलोनिया के लिए ये सदी का बदतरीन दिन है। तफसीलात नुमाइंदा स्पेन शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। किलोमीटर फी घंटा से 144 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं, मूसलाधार बारिशों और 10 मीटर तक बुलंद होती समुद्री लहरों ने इंतजामिया की दौड़ें लगवा दी हैं। सिविल प्रोटेक्शन के इदारों ने खास तौर पर कैटलोनिया के लिए इसे सदी का बदतरीन दिन करार दिया है।
साहिल समंदर के करीब के इलाकों में पानी गलियों और घरों में दाखिल हो रहा है, जहां से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है। इसी तरह साहिल के करीब वाक़े स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जबकि दीगर स्कूलों में भी हाजिरी मामूल से कम रही। इंतजामिया का कहना है कि शदीद मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र 1,20,000 तलबा की क्लासेज मुतासर हुई हैं, वसूल हुई हैं, जिनके मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर 800 के करीब छोटे बड़े वाक़यात रूनवा हुए हैं। इंतजामिया और सिक्योरिटी फराहम करने वाले इदारे इस बड़े खतरे से निमटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जबकि पब्लिक को साहिल के करीब जाने से रोक दिया गया है। दूसरी तरफ तेज बारिशों और तूफान का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जो आइंदा बुध तक जारी रहने का इम्कान है। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। सऊदी अरब में जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के एजाज़ में तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें पार्टी वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं उमैर अली। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में मुनक्कद होने वाली तकरीब में जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी ने मौजूदा हालात पर हुकूमत को खूब तनकीद का निशाना बनाया। इनका कहना था कि हुकूमत की नाअहली की बदौलत आज मुल्क माशी बहरान का शिकार हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से किए गए वादों पर पूरा नहीं उतर रहे। महंगाई के तूफान से आम आदमी का जीना दो भर हो चुका है। मुल्क को IMF के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। खिरोड़ की बात की, आप यकीन जानिए मुझे अच्छा नहीं लगता जो बात मैं करने लगा हूँ। इस वक्त मुख्तलिफ कंपनियों से, मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से 25 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए, निकाले गए। मीडिया हाउसेस से हजारों लोग जो है बेरोजगार हो गए। अब ये मुलाजमतें देने के लिए आए लोग बेरोजगार हो गए। तकरीब से दीगर मुकर्रीन में मुमताज़ खान, कारी मोहम्मद इलियास, आफ्ताब आसिम, नूर ताहिर शाह और दीगर ने भी खिताब किया, जिनका कहना था कि वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ शाना बिशाना खड़े हैं और मुल्क को आईने पाकिस्तान के मुताबिक चलाने की जदोजहद करते रहेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून UAE चौधरी मोहम्मद अल्ताफ हुसैन की खुसूसी दावत पर PFUJ AU जोन के सदर सजाद अकबर खान की सदारत में सहाफ़ियों के वफ़द ने उनके दफ्तर का दौरा किया। इस मौके पर सदर मुस्लिम लीग नून UAE ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को शदीद तनकीद का भी निशाना बनाया। तफसीलात जानते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। सहाफ़ियों की तंजीम PUJ UAE जोन के सदर सजाद अकबर खान की क़ियादत में वफ़द की मुत्तहिदा अरब अमारात मुस्लिम लीग नून के सदर चौधरी मोहम्मद अल्ताफ हुसैन के दफ्तर आमद। मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी सियासत पर सेर हासिल गुफ्तगू हुई और तहरीक इंसाफ की माशी पॉलिसियों का तनकीदी जायज़ा लिया गया। इस मौके पर नून लीग UAE के सदर चौधरी अल्ताफ का कहना था कि इनकी दुआ है कि मियां नवाज शरीफ जल्द से जल्द सेहतमंद हों और पाकिस्तान आकर मुल्की सियासत की भाग दौड़ संभालें, लेकिन अभी इनकी तबीयत ठीक नहीं है। हम तो अल्लाह से दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहतमंद करे और आके अपना पाकिस्तान की बागडोर संभाले, लेकिन अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनका ये जो गर्दन की रग जो दिमाग को जाती है उसका भी मामला है, वो अमेरिका में होगा, यहाँ लंदन में उसका इलाज नहीं है। नून लीग UAE में इख्तलाफात और धड़ेबंदियों के सवाल पर उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून एक ही है जो मियां नवाज शरीफ की क़ियादत में काम कर रही है। कुछ लोगों ने 1.5 इंच की मस्जिद बनाई है, उनको भी अल्लाह हदायत दे देगा। मुस्लिम लीग नून एक ही है जो मियाँ साहब की सरबराही में यहाँ पे कायम है या सागदार साहब की सरबराही में कायम है, वो इसमें तो फ़र्का नहीं है। वो कुछ लोगों ने 1.5 इंच की मस्जिद अलहदा बनाई हुई है, वो अल्लाह ताला उनको हदायत दे देगा इंशाल्लाह। इनका मजीद कहना था कि मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आई, तब्दीली ये आई है कि गरीब ख़त्म हो रहा है। इस मौके पर चीफ कोऑर्डिनेटर बराए गल्फ PFUJ अरशद महमूद राना समेत UAE में सीनियर पाकिस्तानी सहाफ़ी भी मौजूद थे। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। मुत्तहिदा अरब अमारात में पंजाब का रिवायती रंग बिखरने जा रहा है। एशियाई कम्युनिटी के लिए 30 और 31 जनवरी को बसंत मेला सजाया जाएगा। दुबई से देखिए सैयद मुदस्सिर खुशनूद की ये रिपोर्ट। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी और दीगर एशियाई कम्युनिटी के लिए अच्छी खबर, शारजा में 2 रोज़ा बसंत मेले का एहतमाम किया जाएगा। दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुंतज़मीन ने बताया कि बसंत मेले में बच्चों के लिए प्ले एरिया, बारबेक्यू, मौसीकी, फनकारों की परफॉर्मेंस, खाने पीने के स्टॉल सजाए जाएंगे। ऑर्गेनाइजर कंपनी
کمپنی کے GM سید عمر فاروق اور کمپنی کے بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر علی حسن کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ گزشتہ سال کے ایونٹ سے بہت کچھ سیکھا تھا. اس بار پارکنگ کے لیے وسیع جگہ اور واش رومز کا انتظام کیا گیا ہے. پروگرام کے اختتام پر قرآن اندازی کے ذریعے 2 موبائل فونز بھی دیے جائیں گے. آلموسٹ پوری تیاری تو ہو چکی ہے. پورے اپروولس اور جو فیسلٹیز وہاں پر رکھنے کا ہے وہ سب اپروولس اور فیسلٹیز کا پورا انتظام ہو چکا ہوا ہے. اور جو ہم لوگ لاسٹ ایئر جو تھوڑی بہت کمی محسوس ہوئی تھی تو اس کمی کو بھی ہم لوگوں نے پورا کیا ہے. ہم نے ایونٹ کو 24 آور کیا ہے. وی الاؤڈ باربیکیو ایز ویل, اوور نائٹ کیمپنگ ایز ویل. اور سب سے بڑی بات, ہم اس میں 3 انٹرٹینمنٹ کے لیے 3 ڈفرینٹ سنگرز لے کے آ رہے ہیں. وینیو پارٹنر رضوان اشرف کا کہنا تھا کہ میلے کی سیکیورٹی کے لیے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں, جبکہ فیملیز اور بیچلرز کے لیے الگ الگ جگہ مختص کی گئی ہے. واٹر پارٹنر آصف صدیقی نے کہا کہ امید ہے کہ لوگ اس ایونٹ کو خوب انجوائے کریں گے. ہائی لیول کے سیکیورٹی کے انتظامات ہیں. آلموسٹ 20 سیکیورٹی گارڈز including some boxers and even though some volunteer 20-30. اور دین سیگریگیشنز جو ہے فیملیز کی اینڈ بیچولرز کی, وہ فرام دا سیکیورٹی گیٹ کہ دونوں جو ہے سیگریگیشنز ہو جائے گی کہ فیملیز اینڈ بیچولر مکس اپ نہ ہوں. بسنت میلہ 30 جنوری رات 8 بجے سے لے کر 31 جنوری شام 7 بجے تک جاری رہے گا, جس میں منچلے پتنگیں لوٹیں گے اور